हमारे कल से पेपर शुरू है ना। तो सुभाष। इस हाँ, फिजिक्स का पेपर 13th को है। तो तुमने तो इतनी क्लासेस मिस की, कैसे करोगी? एक ही चैप्टर आ रहा है सर। मतलब पहला वाला चैप्टर ही आ रहा है? हाँ, पहला ही आ रहा है। फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो कर ही लिया तुमने। आप तो करिए। राइट। कैपेसिटर। In the last class we did groupings of capacitors. हमने बेसिकली सीरीज ग्रुपिंग कर लिया था पहले. If you connect capacitors, one after another, that's called series grouping. सर ये क्लास सारी अपलोड हो गई है ना। हाँ, ठीक। तुम ऐड हो जाओगे अभी, करते हैं ऐड. ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा मैं. हाँ, उस ग्रुप में नहीं है, उसमें नहीं आई, पोर्टल पे नहीं आई. होगी, पोर्टल पे खोल के देखो. सारी क्लासेस आर रिकॉर्ड इन द पोर्टल. वंस यू इन द ग्रुप यू विल टू वॉच दोस. पर तुम्हें एक बार रजिस्टर करना पड़ेगा एनआईसीएस के पोर्टल में. कर दिया है, ठीक है, फिर हो जाएगा. तो इन द सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स हमने क्या देखा? यू कनेक्ट कैपेसिटर one after another like this with a battery. This is C1, this is C2, this is C3, and this is V. So series grouping mein what happens? Which quantity remains the same? In a capacitor, we have C is equal to Q by V. Q remains the same, charge. So in series grouping of capacitor, Q remains the same. तो हर capacitor में same Q आएगा. As a result, potential difference would be different. इसका V1 हो जाएगा, इसका V2 हो जाएगा, इसका V3 हो जाएगा. And ultimately, we derived the formula for net capacitance. And it was 1 by Cs is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. तो सीरीज ग्रुपिंग का ये फॉर्मूला था. सर 25th की क्लास नहीं है, 23rd तक है। अच्छा, ठीक है, वो आज हो जाएगी फिर. ठीक है। तो इफ वी हैव capacitors in series, then sum of reciprocals of individual capacitors equal to the reciprocal of the resultant capacitance. So this was, hmm, हाँ, उल्टा हो जाता है इसमें. So this was parallel in resistance. Now it's in series for capacitors. So ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था. अगर इफ वी हैव n कैपेसिटर्स इन सीरीज लाइक दिस, ईच इक्वल टू c, तो फिर क्या होगा? इफ यू हैव n कैपेसिटर्स in series, each equal to c. So in that case, 1 by cs would be 1 by c plus 1 by c n terms, that is n by c. As a result, cs would be c by n. तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला था जो हमने लास्ट क्लास में किया था. मनन स्कूल में क्या चल रहा है? तो चैप्टर 2 स्टार्ट हुआ है। स्टार्ट हुआ है, ओके. पोटेंशियल. यस सर। दिस, ऑल राइट. सो दिस इज सी बाय एन. अब हम आगे बढ़ते हैं. पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो in parallel combination of capacitors or parallel grouping, capacitors would be connected in such a way that their one end is at one common point and the other end is at another common point. लिखो एक बार. In parallel combination, in parallel combination of capacitors, in parallel combination of capacitors, capacitors are connected, capacitors are connected in such a way, capacitors are connected in such a way that their one end
their one end is at one common point. Their one end is at one common point, and the other end, the other end is at other common point. As a result, potential difference across each capacitor, potential difference across each capacitor is the same. As a result, potential difference across each capacitor is the same. क्या लिखा है मैंने? Is at one common point? Right. It's a device to store charge or energy. A capacitor is a device to store charge or energy. In our course, we have a parallel plate capacitor because otherwise there's many types of capacitors, but we have only parallel plate capacitor in which you have two conducting plates placed very close to each other, parallel to each other. Distance between them is d, area of each plate is A, and as such, we derived this formula. Capacitance of a parallel plate capacitor is epsilon naught A by D. ये हम already कर चुके हैं. So capacitance of a parallel plate capacitor is epsilon naught A by D. A is the area of the plate, D is the distance between the plates, epsilon naught you know is permittivity of the free medium or space. तो अब क्वेश्चन ये आता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स को मैं कैसे कनेक्ट करना है. So there's one capacitor here, another one is here, and the third one is here. इन तीनों को इस तरह से कनेक्ट करोगे कि तीनों का एक एंड एक कॉमन पॉइंट पे आ जाए और दूसरा एंड दूसरे कॉमन पॉइंट पे आ जाए. So this is a parallel combination or parallel grouping of capacitors. You connect the capacitors in such a way that their one end is at one common point, ये common point हो गया, and the other end is at other common point. And then you connect a battery like this. तो ये parallel combination है. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को आइडेंटिफाई करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि जितने भी कैपेसिटर पैरेलल में हैं उनका एक एंड एक कॉमन पॉइंट पे होना चाहिए और दूसरी प्लेट दूसरे कॉमन पॉइंट पे होनी चाहिए. जैसे कि दिस इज ऑल्सो अ पैरेलल कॉम्बिनेशन. देखो कनेक्टिंग वायर का शेप बदल गया, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है. इवन दिस इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वन एंड मतलब वन प्लेट इज एट वन कॉमन पॉइंट, अदर प्लेट इज अदर कॉमन पॉइंट. तो दिस इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन. अब क्या होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है अक्रॉस ईच कैपेसिटर. ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज जो बैटरी तुमने यहाँ कनेक्ट की है उसी का वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा, वही यहाँ पे होगा, वही यहाँ पे होगा. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस इज द सेम अक्रॉस ईच कैपेसिटर. इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी वी होगा, इसके अक्रॉस भी वी होगा, इसके अक्रॉस भी वी होगा, लेकिन चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड. यहाँ से मेन चार्ज चल रहा है. कन्वेंशनली वी टेक दैट positive charge start from the positive terminal of a battery. वैसे देखा जाए तो एक्चुअली तो होता है कि इलेक्ट्रॉन चलता है. In a conductor, positive charge never moves. It's basically the electron which moves. But conventionally,
we assume that motion of positive charge is nothing but electricity. तो पॉजिटिव टर्मिनल से हमने चार्ज को चलाया, अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज्यादा है उसमें ज्यादा चार्ज आएगा, जिसकी कैपेसिटेंस कम है उसमें कम चार्ज मूव करेगा, ठीक है। सो चार्ज विल रिडिस्ट्रीब्यूट इन सच ए वे दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच इज द सेम। तो चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो पैरेलल ग्रुपिंग में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट होता है बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज ना तो कहीं डिस्ट्रॉय है ना कंजर्व वो हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। मतलब whatever charge is entering, the this charge entering should be equal to the q1 plus q2 plus q3। तो पैरेलल ग्रुपिंग में चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, चार्ज डिवाइड होता है। तो एज सच क्या इक्वेशन होगी, q इज इक्वल टू q1 प्लस q2 प्लस q3। ये डिवीजन ऑफ चार्ज इस तरह से होगा ताकि हर कैपेसिटर पे सेम पोटेंशियल डिफरेंस आए। लेकिन यू नो Q इक्वल टू सी वी होता है, तो Q1 कितना होगा, C1V। Q2 would be C2 into V, Q3 would be C3 into V, because the formula for capacitance is C is equal to Q by V, ये यूज किया है हमने। तो Q is equal to C into V। तीनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस वोल्टेज सेम है, कैपेसिटेंस अलग अलग है तो चार्ज भी अलग अलग है। तो सब्स्टिट्यूटिंग दिस Q1 Q2 Q3 इन इक्वेशन 1 इसमें डाल देते हैं। ये सारे डेरिवेशन नोट्स में हैं, ऑल दीज आर देयर इन द नोट्स ऑल्सो। तो Q इज इक्वल टू C1V, C2V, C3V हो जाएगा। यू कैन टेक V कॉमन, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो Q इज इक्वल टू V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3 और Q बाय V is equal to C1 plus C2 plus C3. So this Q by V would be nothing but capacitance in parallel, the resultant or equivalent capacitance. तो parallel combination में capacitance are simply added. Cp is Q by V. What is Cp? Cp का मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों इस पूरे ग्रुपिंग को हटा के if I connect a single capacitor which is Cp, so that Cp will be given by, if this entire circuit is equivalent to this circuit, इन तीनों का रिजल्टेंट और इक्विवेलेंट Cp है, तो Cp का फॉर्मूला ये होगा। तो दैट इज ग्रुपिंग, सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग, जस्ट द ऑपोजिट व्हाट यू डिड इन द क्लास 10th करंट इलेक्ट्रिसिटी, अभी 12th में भी है वो। तो उसको मैथमेटिकली कैसे लिखोगे, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स resultant capacitance, sorry, parallel combination of capacitors, the resultant capacitance equal to sum of individual capacitances। लिखो in parallel combination of capacitors, in parallel combination of capacitors, resultant or equivalent capacitance, resultant or equivalent capacitance equals to the sum of individual capacitances।
तो या तो सीरीज या पैरेलल, दोनों में से एक आता है 3 मार्क का डेरिवेशन, या दोनों आ सकते हैं 5 मार्क का। तो की पॉइंट्स क्या है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में, लिखो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सबसे पहला पॉइंट तुम्हें क्या लग रहा है? यस, चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड और ये डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज किस तरह से होगा? अकॉर्डिंग देयर कैपेसिटेंसेस। चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड according to the value of capacitances. As you can see, Q is equal to CV. तो अगर कैपेसिटेंस ज्यादा है तो उस पर ज्यादा चार्ज आएगा, एंड वाइस वर्सा। कैपेसिटेंस का मतलब वही है, कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज एंड एनर्जी। तो अगर किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज्यादा तो इट कैन स्टोर मोर चार्ज। सेकेंड पॉइंट क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज द सेम, है ना? पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस across each capacitor is the same. In parallel combination, potential difference or voltage across each capacitor is the same. और क्या हो सकता है? जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आएगी वो हमेशा इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से ज्यादा होगी। अगर सपोज आई हैव टू कैपेसिटर्स, वन 100 माइक्रोफैरड, दूसरा 1 माइक्रोफैरड, तो तुमने देखा था सीरीज में द रिजल्टेंट वोट वाज लेस देन द लीस्ट। सीरीज कॉम्बिनेशन अगर होगा 100 और 1 का, तो जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आएगा 1 से भी छोटा आएगा। लेकिन पैरेलल में क्या होगा? पैरेलल में इट बी मोर देन द मैक्सिमम। जो आंसर आएगा वो ऐड हो जाएगा। सो इन पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, द नेट कैपेसिटेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मैक्सिमम। लिख लो, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। यस मनन? सर हेडिंग हम्म, सुनाई, हेडिंग सुनाई नहीं देती क्या आपको? ये वाला कौन सा, थर्ड वाला? नहीं नहीं सर, तो पॉइंट्स तो लिख लिए, हेडिंग क्या थी? ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पैरेलल फॉर। ग्रुप, ये वाला था पैरेलल ग्रुपिंग, पैरेलल कोई कॉम्बिनेशन ऑफ नहीं, ओके ओके। कैपेसिटर्स। पैरेलल ग्रुपिंग और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो थर्ड पॉइंट हमने लिखा दैट द रिजल्टेंट और नेट कैपेसिटेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मैक्सिमम। ये सारे तुम्हारे नोट्स में हैं वैसे तो, वहां से भी तुम कर सकते हो। और अगर फोर्थ पॉइंट लिख लो, इफ एन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो रिजल्टेंट कितना आएगा? एन टाइम्स सी। अगर n इक्वल capacitors each equal to C are connected in parallel, then the net capacitance would be n times C। जबकि सीरीज में कितना था, याद है किसी को? यस, सीरीज में इट वाज C by n। तो एज सच CP by CN कितना, CS कितना हो जाएगा? n स्क्वायर। हाँ, अगर n कैपेसिटर्स पैरेलल में है तो उसका NC हो गया। वो अगर सीरीज में होगा C by n हो जाएगा। दोनों का रेशियो हमेशा n स्क्वायर आता है। लेट्स आंसर दिस न्यूमेरिकल।
सर आवाज नहीं आ रही है। मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। मैंने कुछ बोला नहीं तो आवाज कैसे आएगी? मैंने ये क्वेश्चन है, डायग्राम बनाया हुआ है, मैंने कुछ वैल्यूज तुम्हें इसमें लिख दी हैं। द क्वेश्चन फॉर यू इज फाइंड द अननोन्स। जो भी अननोन है वो सारा फाइंड करना है। एंड CP ऑल्सो फाइंड V battery voltage, find CP and other unknown quantity. हाँ, माइक्रोफैरड। हाँ, ये माइक्रोकुलम में। नो हरी, आराम से करो। सारा कॉन्सेप्ट तुम लोगों ने कर लिया है। नोटबुक देख के चीटिंग कर सकते हो, बट आंसर से आना चाहिए। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, वो तो हमें मालूम ही है ना? इसे पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की खासियत क्या होती है? वोल्टेज सेम होता है तो कुछ करना ही नहीं था। इसका मतलब जो वोल्टेज V2 यहाँ पे है सेकंड कैपेसिटर के अक्रॉस, वही V1 हो जाएगा 100, और वही V3 हो जाएगा। तीनों कैपेसिटर्स पैरेलल में हैं, तो तीनों के अक्रॉस सेम वोल्टेज हो गया। द मोमेंट यू गेट द वोल्टेज, C1 कैसे निकलेगा? C1 निकलेगा Q1/V1। C1 हो जाएगा, Q इज 10 माइक्रोकुलम बाय 100। 10 माइक्रोकुलम बाय 100 वोल्ट, तो 0.1 माइक्रो फैरड। ठीक है। C = Q/V, तो 0.1 माइक्रो फैरड हो गया। C3 हमें ऑलरेडी दे रखा है, तो Q2 निकाल लेते हैं। ये ये बेसिकली C2 होना चाहिए था। तो Q2 कैसे आएगा? Q2 वुड बी C2 × V2। C2 is 1 माइक्रोफैरड, V2 is 100 volt, so Q2 will be 100 माइक्रोकुलम। Q2 100 माइक्रोकुलम हो गया। देन यू हैव Q3 एंड V3, उससे C3 आ जाएगा। C3 would be Q3/V3। Q3 is how much? 5 माइक्रोकुलम divided by V3 is 100, तो 0.05 माइक्रोफैरड। ठीक है, अस्मी समझ में आ गया? मनन, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. पूछ लेना कुछ भी हो बेझिझक। कौन सा माइक्रोकुलम? ये तो फैरड होगा ना, कैपेसिटेंस। ये और क्या बचा अब? एक तो Q निकाल सकते हैं। Q इज अननोन, Q वुड बी Q1
प्लस Q2 प्लस Q3 कितना आ रहा है ये? शनाया निकाला तुमने Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 नेट चार्ज फ्रॉम द बैटरी? तो Q1 था 10 माइक्रोकुलम, Q2 था 100 और Q3 था 5 115 माइक्रोकुलम। फिर बैटरी वोल्टेज वुड बी द सेम एज द वोल्टेजेस V1 V2 V3, 100 वोल्ट हो जाएगा। एंड द नेट कैपेसिटेंस कितना हो गया? C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 प्लस C2 प्लस C3 कितना आ गया? C1 is 0.1, C2 is 1, C3 is 0.05. So this is 1.15 microfarad. Farad is a huge quantity. That is why we use picofarad, microfarad, nanofarad. ठीक है? Now more questions on series parallels. आगे बढ़े हैं, भव्या? Yes, sir. क्या तुम गायब कैसे हो जाती बीच बीच में? सर वो माउस दूर रखा हुआ है ना। तो माउस तो कैट के पास होना चाहिए हमेशा। तो फिर नोटबुक नहीं रखी जाएगी ना लिखने के लिए। अच्छा, अभी कोई एग्जाम है क्या तुम्हारा कमिंग वीक में? हाँ सर, कल है परसों है, फिर हाँ, सैटरडे को है, कल फिर कौन सा है? मंडे को है। कल कौन सा है? कल इंग्लिश है। अभी इंग्लिश पढ़ रही हो मुझे लगता है तुम अभी, साइड में इंग्लिश रखी है नहीं नहीं, इंग्लिश तो हो गया। अच्छा ठीक है, फिर कंसंट्रेट कर लो। फाइंड नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, लिख लो। वैल्यूज दे रहा हूं मैं अभी। इन द गिवन सर्किट फाइंड नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। पहले सर्किट रीड्रॉ कर लो ढंग से। ए और बी के बीच में वी हैव टू फाइंड नेट कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे चैलेंज ये है, तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कहाँ सीरीज है कहाँ पैरेलल है। सोचो पहले। एंड इफ यू वांट यू कैन कनेक्ट अ बैटरी बिटवीन ए एंड बी ऑल्सो। उससे तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि अगर सेम चार्ज फ्लो करता है तो वो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। और पैरेलल में क्या होता है? कैपेसिटर का वन एंड एट वन कॉमन पॉइंट, अदर एंड एट अदर कॉमन पॉइंट। ठीक है, दिस इज अ हिंट। पैरेलल में एक एंड एक कॉमन पॉइंट पे होगा प्लेट का, कैपेसिटर का। दूसरा एंड दूसरे कॉमन पॉइंट पे होगा। सीरीज में क्या होगा? एक के बाद एक कनेक्ट होगा। तो अगर चार्ज चल रहा है तो दोनों में सेम चार्ज आता है। If the same charge flows, it is series combination. If one at one common point, other at under common point, then it's parallel combination. दिमाग लगाओ, कहो, ट्राई करो। ये था ना C2, इस ये C2 है, इनफैक्ट मिस प्रिंट हो गया था ये। ठीक है, ये इसका है। हाउ कम दिस वन सीरीज? कैसे? यहाँ से अगर करंट चलेगी, चार्ज चलेगा तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, सेम चार्ज कैसे आ रहा है? So you can start Q charge from the battery and then can see parallel। तुम्हें कहीं नजर आ रहा है? पैरेलल में एक प्लेट एक कॉमन पॉइंट पे होनी चाहिए, दूसरी प्लेट दूसरे कॉमन पॉइंट पे, जैसे यहाँ पर है, तब वो पैरेलल कहलाता है।
मनन कुछ लग रहा है तुम्हें पैरेलल में है यहाँ पे? देखो, सोचो कोई पैरेलल नजर आ रहा है इस सर्किट में? इफ यू कैन सी दैट एनी टू कैपेसिटर्स इन पैरेलल। मेरी बीच वाले हम्म। पता नहीं सर। सीरीज, अगर यहां से चार्ज चलेगा तो इसे इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा, थोड़ा इधर जाएगा, थोड़ा इधर जाएगा, लेकिन ये चार्ज थोड़ा इधर आएगा, है ना? ये चार्ज आगे चल के इसमें भी आ जाएगा, मतलब इन दोनों में सेम चार्ज आएगा। देखो जरा, जो मैंने 10 माइक्रोफेरेड लिखा है, इन दोनों में सेम चार्ज आएगा, इस वाले में और इस वाले में। द सेम चार्ज विल फ्लो फ्रॉम दीज टू। ये दोनों सीरीज में हो गए। This 10 microfarad and this 10 microfarad, they are in series because same charge चलेगा। तो we can say that 10 microfarad and 10 microfarad are in series। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में ये वाला फॉर्मूला लगेगा, 1/CS = 1/C1 प्लस 1/C2। तो 2/10 हो जाएगा, CS हो जाएगा 5। C1 C2 ये दोनों सीरीज में है। अगर कोई डाउट है तो भी पूछ लो, बिकॉज हाँ वो कर लेते हैं। लेबलिंग कर लो। So the capacitor between CD and DE are in series because same charge flow कर रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, वैसे भी अगर दो कैपेसिटर इक्वल हैं और सीरीज में हैं, क्या था ना अभी फॉर्मूला, CS = C/N। हम डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे, दोनों कैपेसिटर 10 है, 10 के इक्वल है, तो कितना हो जाएगा उनका? 5। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों को हटा के इनकी जगह एक सिंगल कैपेसिटर लगा देंगे। सो आई रिमूव दिस and in place of these two I'll place a single capacitor because ये दोनों सीरीज में थे, इनका आंसर 5 आ गया। तो मैं दोबारा सर्किट डायग्राम बना लेता हूँ। FNG कौन सा, ये और ये लेट्स डिस्कस दिस। अगर हमें लग रहा है कि सपोज ये दोनों भी सीरीज में हैं, ये है नहीं, ये देख लेते हैं। सपोज यहाँ पे क्यू चार्ज चल रहा है, तो क्यू चार्ज चलेगा तो कुछ चार्ज यहाँ जाएगा, कुछ चार्ज यहाँ जाएगा, तो चार्ज तो ब्रांच आउट हो गया। विच 10? ये और ये, लो ये भी देख लेते हैं। यहां से चार्ज चल रहा है, कुछ चार्ज यहां से चार्ज चलता हुआ आया, कुछ यहाँ गया, कुछ यहाँ गया, यहाँ भी रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो बैटरी में तो चार्ज सर आएगा। तो दैट कैन नॉट बी इन सीरीज। हाँ बोलो। सर सी और ई एफ वाले। सी सी और, ई एंड ई एफ। हाँ CD and EF किस में बता रहे हो तुम? नहीं नहीं सर, सी ई और सी एफ, ओ सॉरी ई एफ। NCF किस में? नहीं नहीं सर, सी एंड सी एफ फॉर सीरीज। दिस इज CE, दिस इज CF। नहीं सर, ई एफ। अच्छा ये, हाँ। अब चलो वो भी टेस्ट कर लेते हैं। यहां से हमने चार्ज चलाया, ठीक है। अब टेल मी वन थिंग, ये सारा चार्ज इस पे जाएगा क्या? यहाँ भी तो चार्ज आ रहा है। इज दिस चार्ज इज द सेम हाँ। एज दिस? नो, यहाँ हाँ से भी नहीं कुछ है चार्ज सर। चल रहा है, तो दे कांट बी इन सीरीज। वो ब्रांच, जहां भी ब्रांचिंग होगा वो सीरीज में नहीं होगा। इन दो सीरीज के अलावा कुछ और भी नहीं बन रहा है, ये सिर्फ ये दो जो मैंने किए ना, वही सीरीज में है दिस मोमेंट, और कुछ भी नहीं है, वही दोनों है। तो बी पेशेंट, नया डायग्राम बनाओ, उसमें इन दोनों को हटा के 5 लगा दो, ठीक है। ड्रॉ द सर्किट अगेन, इसके अलावा कुछ नहीं है, सब जगह ब्रांचिंग हो रहा है। क्योंकि ये सीरीज पैरेलल अगर समझ में आ गया तो इलेक्ट्रिसिटी में भी दिक्कत नहीं आएगी आगे, ठीक है।
तो दोबारा सर्किट बना लेते हैं हम। E F G. This is 5. This is 10. This is 5. This is 5. This is 10. ठीक है। तो जो हमने अभी 10 और 10 का सीरीज कॉम्बिनेशन निकाला था, ये किसके बीच में था? ये सी और ई के बीच में था। तो वो डाल दो, सी और ई के बीच में मैं एक और 5 लगा देता हूं। तुम लोग रेसिप्रोकल लेना भूल जाते हो, इसलिए मैंने कहा था जब भी दो सीरीज में होंगे, इफ टू कैपेसिटर्स इन सीरीज, सिंस यू फॉरगेट टू टेक रेसिप्रोकल, मल्टीप्लाई इन न्यूमरेटर, ऐड इन डिनोमिनेटर, कभी गलती नहीं होगी। तो 10 × 10 सीरीज में थे, तो सिंस वी फॉरगेट टू टेक रेसिप्रोकल, ऐसे कर लो। इज दैट क्लियर? भव्या, तुम्हें बार बार पूछना पड़ता है, तुम सो जाती हो बीच में। अब जरा देखो वापस, कुछ सीरीज तो कुछ है नहीं कहीं पे, पैरेलल कुछ नजर आ रहा है? पैरेलल कुछ नजर आ रहा है? यस। हाँ, अब कौन से दो पैरेलल में, कौन से तीन पैरेलल में, बताओ। 5 5 5। ओके, शनाया से 5 5 5। तुम बताओ अगस्त से कौन कौन से पैरेलल? सारे पैरेलल हो गए, ठीक है। 5 5 5 5, ठीक है। व्हाट डू यू से, व्हाट डू यू से? विच विच आर इन पैरेलल? चारों हैं ये पैरेलल में, या तीन है या दो हैं? 5 5 5 एंड 10। आराध्य, विच? चारों। मनन, तुम बताओ कौन से पैरेलल में? थर्ड सबसे लेफ्ट वाले दो 5 हैं बस। बस वही पैरेलल करेक्ट तो। आंसर है, ओनली 2 आर इन पैरेलल। हाँ, अब कैसे वो देखते हैं। पैरेलल का बड़ा सिंपल सा फंडा है कि उसका एक प्लेट एक कॉमन पॉइंट पे होना मांगता है, ये कॉमन पॉइंट पे है। दूसरा प्लेट दूसरे कॉमन पॉइंट पे होना चाहिए, है। ये क्यों पैरेलल में नहीं है? एक प्लेट तो इसका एक कॉमन पॉइंट पे आ गया, ठीक है, लेकिन दूसरी प्लेट यहाँ है बीच में, और एक कैपेसिटर आ गया। सीरीज के लिए अब अभी कहा था, सीरीज तो था ही नहीं, पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। पैरेलल के लिए एक प्लेट एक कॉमन पॉइंट पे, सारी दोनों कैपेसिटर के तीनों की, और दूसरी प्लेट एक कॉमन पॉइंट पे। ये पैरेलल नहीं होगा बिकॉज ये बीच में बैठा हुआ है ना 10। अगर ये पॉइंट यहाँ होता है ना कनेक्टेड, अगर ये यहाँ कनेक्ट होता, तीनों पैरेलल हो जाते हैं। मतलब हर कैपेसिटर का एक एंड एक कॉमन पॉइंट पे, दूसरा एंड दूसरे कॉमन पॉइंट पे, तब ये पैरेलल होगा। ओनली 5 and 5 इन पैरेलल लिख लो यहाँ पे। 5 and 5 इन पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है? अभी किया था, चुपके से ऐड कर दो। 10 माइक्रोफैरड आ गया। अभी करेंगे 1 by 1। ये पूरा सर्किट सिंपली एकदम से सिंपलीफाई नहीं हुआ सर्किट, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें होती जाएंगी। अब नेक्स्ट सर्किट में तुम क्या करोगे, इन दोनों को हटा के इनकी जगह एक सिंगल 10 माइक्रोफैरड लगा दो। न्यू सर्किट में इन दोनों को रिमूव करके कनेक्ट ए सिंगल कैपेसिटर। अब ये दोनों हट जाएंगे, इनकी जगह एक 10 आ जाएगा, 10 वाला आ जाएगा। बनाओ। दोबारा से सर्किट बना लो।
अब ई और ए के बीच में क्या लगाना है मुझे? आई विल रिमूव दीज टू फाइव्स, आई विल पुट ए 10। जो मैं 10 लगा रहा हूँ मैं डिफरेंट कलर से लगा देता हूँ। तो ये लेटेस्ट 10 आया था वो हमने लगा दिया। अब वापस देखो क्या हो रहा है। सीरीज पैरेलल ढूंढो वापस से। सर वो दो 10 ऊपर वो सीरीज में। बस हो गया काम, आगे बढ़ो फिर। हाँ अब तो बड़ा सिंपल है, मैं भी कर सकता हूँ उसको। यहाँ से जो चार्ज चलेगा वो उसमें आएगा। तो ये दोनों 10 सीरीज में आ गए। तो वापस यही कहानी हो जाएगी, 10 and 10 सीरीज, और 10 10 का सीरीज बन जाएगा 5 माइक्रोफैरड। तो 10 10 को हटा के 5 बना दें। बस हो गया ना, कहानी सॉर्ट आउट होगी पूरी। मतलब 1 by 1 सॉल्व हो गया ये। अगर तुम इकट्ठा सॉल्व करना चाह रहे तो वो नहीं होगा। इन प्लेस एफ और ए के बीच में एक और 5 लगा दो। दैट इज, अब क्या हो रहा है अस्मी बताना। अस्मी, तो सीरीज पैरेलल हो रहा है अब। ये दोनों 5 5 पैरेलल में हो गए ना। इन दोनों की जगह हमने सिंगल 5 लगा दिया। ये किया था ना, सीरीज में थे ना ये दोनों। इनका 5 आ गया तो 5 लगा दिया मैंने। अब ये 5 and 5 पैरेलल हो गए। तो अगले सर्किट में इन दोनों 5 को हटा के, दो 5 अगर पैरेलल में होंगे तो क्या आंसर आएगा? ये आ जाएगा वापस से। तो इन दोनों को हटा के 10 लगा दो। तो 5 and 5 पैरेलल में है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। रिप्लेस 5 and 5 by 10। नेक्स्ट सर्किट इज दिस। तो मैं 5 5 को हटा के किससे रिप्लेस करेंगे? 10 से। अब जरा देखो क्या हो रहा है। बैटरी रिमेंबर यहाँ लगी है ए और बी के बीच, जिन दोनों पॉइंट्स के बीच में तुम्हें निकालना होता है उनके पीछे बैटरी लगा देते हैं, वहां से चार्ज चल रहा है। अब जरा देखो, हाँ यहां से अगर चार्ज चलेगा तो थोड़ा इधर जाएगा थोड़ा इधर जाएगा, ठीक है। मान लो इसमें Q1 चार्ज आ रहा है, तो वही Q1 इसमें आ जाएगा। इसका मतलब ये और 10 सीरीज में हो गए। उसके बाद तो बहुत सिंपल है, मैं भी कर दूंगा उसके बाद तो। उसके बाद तो सबसे सिंपल है। उसके बाद तो ये 10 and 10 का सीरीज कितना हो गया? 10 and 10 का सीरीज 5 लगा दो यहाँ पे। अब तो अंधा भी बता देगा क्या हो रहा है। देखो आ गया आंसर। 5 and 5 का पैरेलल कितना हो गया? सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ सीरीज एंड पैरेलल। अभी शुरुआत है क्वेश्चंस की, बेसिक है ये। तो जिन दो कैपेसिटर के बीच में, हमें दो पॉइंट्स के बीच में नेट कैपेसिटेंस निकालना है, उसमें बैटरी लगा दो, थोड़ा इजी हो जाता है चीजें। और सीरीज पैरेलल के लिए करंट को स्टार्ट करो, क्यू स्टार्ट करो। क्यू अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो सीरीज नहीं है। और पैरेलल का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पैरेलल तभी माना जाएगा जब जितने भी कैपेसिटर्स हैं, चाहे वायर का शेप कुछ भी क्यों ना, जैसे ये वायर ऐसे बना दिया मैंने, तब भी पैरेलल है ये।
इसको ऐसे ऐसे घुमा के लगा दो तब भी ये पैरेलल है, ये सारे पैरेलल है इस समय। ये सारे के चारों के चारों 1 2 3 4 दे आर ऑल इन पैरेलल। तो वायर की शेप से पता फर्क नहीं पड़ता, उनकी प्लेट कहाँ कनेक्टेड है उससे पर पता लगेगा। ठीक है, ठीक है भव्या, मनन समझ में आ गया? Yes, sir. ओके। अनन्या भी नहीं है आज क्लास में, अच्छा, शी शिफ्टिंग हर हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जितने न्यूमेरिकल्स करोगे फिजिक्स में उतना ही होल्ड आएगा, ठीक है, ये मान लो।